So the chapter name is Correlation and Regression. So far, we have studied the statistical methods used for analysis of data involving one variable only. हमने statistical methods में पढ़ा है एनालिस करने के लिए कोई भी डेटा के लिए हमें एटलीस्ट वन वेरिएबल की नेसेसरी है, like height, weight, marks, profit, wages, and so on. However, we may come across certain situation where observing two variables is needed. Example, we may have data regarding demand and price of a certain commodity over a period of time. So यहाँ पे आपको दो डेटा का रिक्वायरमेंट पड़ा, that is first demand and second is price. Second is weight of a person and blood pressure of the person. Third, quantity of water given and yield of a crop. So such a set of observations or measurements made on two variables, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, डिमांड प्राइस, वेट ब्लड प्रेशर, क्वांटिटी एंड yield of a crop. So these two variables are called bivariate data कहते हैं. These variables are denoted by x and y respectively. So let us understand what is bivariate data. When data are collected on two variables simultaneously, क्योंकि आपको simultaneously ही डेटा को कलेक्ट करना होगा. आपने एक डेटा अभी कलेक्ट किया, दूसरा डेटा थोड़ी देर बाद जाके कलेक्ट करोगे तो वो चलेगा नहीं. So both the data and two variables data are to be collected simultaneously and they are known as bivariate data. The corresponding frequency distribution derived from it is known as bivariate frequency distribution कहते हैं. तो आपको जब corresponding frequency distribution मिलेगी उन bivariate data से जो आपने derived करी होगी उसे कहते हैं bivariate frequency distribution. Example, prepare करो bivariate frequency table for the following data relating to the marks in statistics X and mathematics Y. So you have been given 15, 13, 1, 3, 2, 6, 8, 3, 15, 10, 3, 9, 13, 19 ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया. तो जो पहला वैल्यू होता है ब्रैकेट में वो x होता है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है एंड दूसरी वैल्यू y है, दैट इज मैथमेटिक्स. तो x एंड y हो गया. अब मुझे यहां से इनका डेटा बनाना है. ओके, सो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा और वो टेबल फिर इस तरीके से बनेगी. अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला टेबल था उसमें था 15, 13, 1, 3. तो अब आप करोगे यहाँ पे कि जब आप टेबल बनाओगे तो 15 और उसके 13 में जाके उसको मार्क कर दोगे और वो टेबल इस तरीके से आपको मिलेगी. हमने अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, ये टेबल हमें एग्जाम में बनानी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है. We note from the table that sum of the cell frequencies यानी f में 0 है. अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो ओवर हियर वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पे 0 है, ओवर हियर दिस इज आल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो जहां कुछ भी नहीं है जिन सेल्स में उन सब जगहों पे 0 आ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर्ड एज 0. So starting from the above bivariate frequency distribution, we can obtain two types of univariate distributions. Yes, two types of univariate distribution हमें मिलेंगे. Number one is marginal distribution and second is a conditional distribution. Now over here, if we consider the distribution of statistics marks along with the marginal totals presented in the last column, तो ये है marks in statistics over here.
0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और उसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 12, 14, 11, 9. So that we call as marginal distribution of marks of statistics. Similarly, we can obtain one more marginal distribution of mathematics marks also. Marks of mathematics आपको दे रखा है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 3, 8, 15, 14, 10. So table shows the marginal distribution of marks of statistics. So this is known as what? Marginal distribution of marks of statistics. Statistics का marks है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और उसकी frequency थी 4, 12, 14, 11, 9. टेबल के लास्ट कॉलम में. So we can find the mean and standard deviation of marks of statistics from the table. तो जो marginal distribution of marks of statistics है, मैं यहाँ से mean भी find कर सकता हूँ और मैं यहाँ से standard deviation भी find कर सकता हूँ. They would can find the known as marginal mean. तो उसे हम बोलेंगे marginal mean find किया, marginal standard deviation of statistics के marks का find किया. Similarly, we can obtain that marginal mean and marginal standard deviation of maths marks also. Same way से हम maths marks भी obtain कर सकते हैं. If we want to study the distribution of marks of statistics for a particular group of students, say for those who got marks between 8 to 12, इनको marks है maths में. So we come across with another univariate distribution that is known as conditional distribution, because I have given the condition. मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया है कि 8 to 12 मार्क्स के स्टूडेंट्स चाहिए मुझे. So conditional distribution of marks in statistics of students having mathematics marks 8 to 12 वाले मैंने राउंड कर दिए. तो वो होंगे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 2, 5, 4, 3, 1. That is 15 total. तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. So we may obtain the mean and standard deviation from the table से हमें मिल सकता है. They would be known as the conditional mean and the conditional standard deviation of marks of statistics बोला जाएगा. Now, if there are m classification for x and n classification for y, then there are altogether be p plus q minimum conditional distribution. Now minimum का मतलब क्या हो गया कि आपके पास रो कितने हैं एंड कॉलम कितने हैं. अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 5 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, तो मैं मिनिमम कितनी कंडीशन दे सकता हूं, तो वो 10 है. मैं 0 to 4 का पूरा एक कॉलम स्टेट्स का ले सकता हूँ, 4 to 8 का, 8 to 12 का, या मैथमेटिक्स मार्क्स का 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 ले सकता हूँ. तो दैट मींस टोटल में 10 ले सकता हूँ. तो वो कैसे पता चलेगा? p plus q, दैट इज मिनिमम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से. नोट, for 5 cross 5, that is p cross 5 classification of bivariate data, the maximum number of distribution is 5 multiply 5, 25. तो जब मैक्सिमम के बारे में बात आएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 multiply 5. And sum of the cell frequencies in bivariate frequency table में भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, क्योंकि खाली जो जगह है वहां पे 0 आ जाएगा. For a 5 cross 5 bivariate frequency table, the maximum number of marginal distribution 2 है. एक है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा है मार्क्स इन मैथ्स. तो यहां से आपको दो ही टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकते हैं. So we understand the meaning of correlation. So correlation is the relationship that exists between two or more variables के बीच में होता है. If two variables are related to each other in such a way that change in one variable creates करेगा corresponding change in other, then the variables are said to be correlated कहते हैं. तो कोरिलेशन क्या है? एक टाइप का रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में. इफ टू वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है सच दैट कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा. एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है एक इंक्रीज होता है.
तो उनके बीच में कोई रिलेशन है, उसे कहते हैं को रिलेशन। क्योंकि को का मतलब होता है कि देयर हैज टू बी टू वेरिएबल्स जिनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। एग्जांपल, सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स होगा तो ही तो प्रॉफिट होगा, अगर सेल्स नहीं होगा तो लॉस होगा। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सो दैट इज वाई वैसा ही कि अगर मेरा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स 30, 35, 40, 41, 42, तो मेरा कोल्ड ड्रिंक का सेल भी इंक्रीज होगा। पर जैसे जैसे डे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कोल्ड ड्रिंक का सेल भी डिक्रीज हो जाएगा। डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, जैसे जैसे मेरा डिग्री कम होता जाएगा, दैट मीन्स कि 18, 17, 16, 15, तो सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स विल इंक्रीज। Now we talk about the type of correlations. So type of correlation is divided into two parts. First is positive correlation and second is negative correlation. Now what is positive correlation and what is negative correlation? Positive correlation means in the same direction, and negative correlation means you are in the opposite direction. चलो तो डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। फर्स्ट, बोथ वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो है पॉजिटिव या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों डाउन होंगे। मतलब दोनों डाउन होंगे तो मतलब सेम डायरेक्शन है, दोनों ऊपर है तो भी सेम डायरेक्शन है। इंक्रीज इन फर्स्ट वेरिएबल इंडिकेट्स करेगा कि इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल है। अगर डिक्रीज इन फर्स्ट वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, amount of rainfall and yield of crop, day temperature and sale of ice creams, age of husband and wife, speed of vehicles and distance traveled after brakes are applied। तो ये सब जो एग्जांपल है वो किसके हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन के। चले नेगेटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल्स वेरी करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। इंक्रीज इन फर्स्ट वेरिएबल इंडिकेट्स करेगा डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल। एग्जांपल, day temperature and sale of woolen clothes, dose of insulin and blood sugar, price and demand। तो ये हो जाते हैं हमारे नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ स्पूरियस कोरिलेशन, if two variables are not related to each other then the study of correlation between them is called spurious correlation। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन देम, देन वी से दैट इट इज अ स्पूरियस कोरिलेशन। अगर कोई आपको ये बोले कि इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट द मार्क्स विल बी गिवन, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम तुरंत चिल्लाएंगे कि भाई हाइट के हिसाब से मार्क्स दे दिया जाए। क्योंकि मम्मी को बोलना पड़ेगा अभी कल से कंप्लेंट पिलाओ मम्मी, हमको हाइट के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। पेरेंट्स चिल्लाएंगे। ये ऐसा डिसाइड किया कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि अरे ऐसा एक काम करते, एक नया रूल आया कि आपके बॉडी के वेट के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। तो भाई बॉडी के हिसाब से कोई मार्क्स देता है क्या? मुझे इंस्टीट्यूट ने बोला कि अकॉर्डिंग टू द चेतन सर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर शर्ट द सैलरी विल बी गिवन। तो मैं तुरंत बोलूंगा एक काम करो मैं जापान जाके आता हूँ। बोले क्यों जापान? बोलो सुमो लोगों के साथ बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, हट्टा कट्टा होके आऊंगा तो शर्ट का साइज बड़ा होगा, सैलरी वैसा ही देगा ना तुम लोग। When two variables are not related to each other, then the study of correlation between them is said to be spurious correlation। So that means there is no relation between two variables। So height of students and marks scored in exam, size of shirt and monthly income, तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं टच वुड, टच वुड बोले तो वुड बोले यहाँ पे ऐसा टच करते हैं, क्यों यहाँ टच करते हैं? हम बोलते हैं ना कभी कभी तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है।
अब भूसा किसको बोलते हैं? कचरा। किसका कचरा? फर्नीचर का। तो फर्नीचर का कचरा इधर है, धीरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ टच करते हैं, टच वुड। अगर वुड नहीं मिला तो, अब वुड मिलता है तो ऐसे टच कर लेते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अगर हम बात करें तो पहला था पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड स्पूरियस कोरिलेशन। नाउ तो पॉजिटिव क्या था? सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन, एंड स्पूरियस कोरिलेशन नो रिलेशन। नाउ वी विल बी स्टडिंग द मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो पहला आता है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, Spearman's rank correlation coefficient, and fourth is the congruent deviation method. So now scatter diagram. Scatter diagram हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कार्ल पियर्सन क्यों पढ़ते हैं? स्पीयरमैन क्यों पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट डिवीजन क्यों पढ़ेंगे? तो पहले ये भी समझते हैं। स्कैटर डायग्राम हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शन और डिग्री क्या है। डिग्री तो बताएगा नहीं, डायरेक्शन एंड नेचर बताएगा। तो जो स्कैटर डायग्राम है वो हमें ये बताएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अबाउट द डायरेक्शन, कि हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे और हमारा नेचर क्या है। कार्ल पियर्सन हम स्टडी करते हैं फॉर द वेरिएबल्स के लिए, रैंक कोरिलेशन स्टडी करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स, और तुरंत झटके से आंसर चाहिए कि इसके बीच में कोरिलेशन होगा कि नहीं होगा, एक अंदाजा। तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा is called scatter diagram, and it is used to decide only the type of correlation, मतलब कि उसका डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, उसके लिए हम स्कैटर डायग्राम पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू डिसाइड द कोरिलेशन इज लीनियर या वो नॉन लीनियर है, इसको फाइंड करने के लिए भी। तो सबसे पहला है हमारा perfect positive correlation. Now what is perfect positive correlation? If all the plotted points lie on a straight line rising from the lower left hand corner to upper right hand corner, then correlation is said to be perfectly positive. ये x एक्सिस है, x डैश y डैश 0, 10 से लेके 80 तक, 10 से लेके 110 तक, और मैं सारे पॉइंट्स को नीचे से ऊपर एक ही स्ट्रेट लाइन में रखता हूं। तो जब ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर राइट हैंड कॉर्नर सेम स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो उसे आप कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की जो वैल्यू है दैट इज डिग्री ऑफ 1। Perfect negative correlation. If all the plotted points lie on a straight line downward from upper left hand corner to lower right hand corner, correlation is said to be perfect negative correlation. यहाँ पे एक हम करेक्शन करेंगे, स्ट्रेट लाइन राइजिंग लिखा है, इट इज डाउनवर्ड, ये यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा। डाउन फ्रॉम लो अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। तो एक्स एक्सिस पे है 10 से 80 तक, 10 से 110 तक y में, and you will be going downward from upper left hand corner to lower right hand corner, and वो भी perfect negative correlation, एकदम नीचे स्ट्रेट, उसे कहते हैं perfect negative correlation। और यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी that will be -1। High degree of positive correlation. If all the plotted points fall in a narrow band
and showing a rising tendency from the lower left hand corner to upper right hand corner, ये इंडिकेट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन को। तो मतलब आप स्ट्रेट लाइन के एकदम पास में रहते हो। तो जब आप स्ट्रेट लाइन के एकदम पास में रहते हो उसे कहते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। So if all the plotted points fall in a narrow band and shows a rising tendency from the lower left hand corner to upper right hand corner। तो आज अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये स्ट्रेट लाइन के एकदम पास में ही जाएंगे। सॉरी मेरा थोड़ा डायग्राम डिस्को वाला हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, बट ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाए तो high degree of negative correlation। Now in high degree of negative correlation में if all the plotted points fall in a narrow band and shows a declining tendency from the upper left hand corner to the right hand corner, lower left right hand corner, then it indicates the existence of high degree of negative correlation। तो जब आप नीचे आ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन पे आप आसपास होते हुए आ रहे हो तो उसे आप कहते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। Low degree of positive correlation, the plotted points are widely scattered over the diagram and shows a rending tendency from lower left hand corner to upper right hand corner, and it indicates the existence of low degree of positive correlation। So that means कि आप जब नीचे से ऊपर जा रहे हो और आप स्ट्रेट लाइन के काफी दूर हो तो उसे आप कहते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तब ये लाइन से आपके जो पॉइंट्स प्लॉटेड है वो काफी दूर है। तो जो पॉइंट्स दूर हैं, काफी अलग है, स्कैटर्ड है, उसे कहते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, if the plotted points are widely scattered है over the diagram showing a declining trend from upper left hand side to the lower right hand side, तब ये इंडिकेट करेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और आप डाउनवर्ड जा रहे हो और स्ट्रेट लाइन से काफी दूर है उसे कहते हैं लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम में नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन, if the plotted points lie on a straight line parallel to x axis or y axis और in a haphazard manner में है आप और आप इंडिकेट करते हैं एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स में। और ये यू शेप में है और जब ये यू शेप में होता है तब उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस? इट इज अ डायग्रामेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम से पढ़ते हैं इसलिए इट इज अ डायग्रामेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। इट इज यूज्ड टू डिसाइड ओनली डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशन। हम यहाँ पे सिर्फ डिसाइड करते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट और अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहा है। It is very rough measures of correlation since the exact magnitude of correlation cannot be obtained। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। So now discuss the Karl Pearson's coefficient of correlation का डिस्कशन करते हैं। Definition that comes just after the correlation of scatter diagram method में लूप होल्स था, नेगेटिव था कि भाई जब आप डायग्राम नंबर परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव बनाते हो तो यू गेट द आंसर r is equal to 1।
बट जब आप हाई डिग्री, लो डिग्री के डायग्राम्स बनाते हो तब आपको आर की वैल्यू नहीं मिलती। तो तब उसको ओवरकम करने के लिए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पिक्चर में आना पड़ा। So given a set of n pair of observations x1, y1, x2, y2, dot 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 x and yn relating to two variables x and y, the coefficient of correlation between x and y are denoted by the symbol r. Is defined as ratio of covariance between x and y to the product of standard deviations of x and y. मतलब यहाँ से फॉर्मूला बनाया कि सिंबल ऑफ आर से डिनोट होगा रेशियो। रेशियो का मतलब होता है ए अपॉन बी का फॉर्मेट, पर रेशियो किसका? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। टू टू द का मतलब है लाइन आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एस एक्स एंड एस वाई। तो आप सिग्मा एक्स भी बोल सकते हो, सिग्मा वाई भी बोल सकते हैं। सो कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स and this is standard deviation of y. So this was the first formula जो कार्ल पियर्सन ने अपने फॉर्मूला को इन्वेंट किया था। This expression is known as Pearson's product moment formula भी बोला जाता है, and it is used to measure the linear correlation between x and y. So what are the formulas of Carl Pearson's coefficient of correlation? First formula था R is equal to covariance xy divided by under root variance of x under root variance of y, where covariance xy is equal to होता है sigma x minus x bar divided by y minus y bar upon n. Second, R is equal to covariance xy divided by sigma x upon sigma y, क्योंकि आप रूट हटाओगे तो sigma x sigma y आ जाएगा। Third, R is equal to sigma x minus x bar multiply y minus y bar divided by अंडर रूट में सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर। फोर्थ, R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y divided by अंडर रूट n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर अंडर रूट n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर। Fifth is equal to if x and y large number में है then u is equal to x minus a होगा and v is equal to y minus b होगा। So rxy is equal to ruv and x and y को uv रिप्लेस करेंगे तो जो फॉर्मूला नंबर 4 में था वही फॉर्मूला नंबर 5 में आएगा, बट u की जगह पे x आ जाएगा एंड v की जगह पे y आ जाएगा, रिप्लेस हो गया। तो ये फॉर्मूला था हमारा formula of Carl Pearson's coefficient of correlation.